Hello. Welcome, students. Welcome back to the channel. Welcome back to the lecture series that we are continuing since last couple of days. And as per as the topics are concerned, बेटे जहाँ तक टॉपिक्स की बात है तो हमने एक दो टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर किए। पहली बात न्यूट्रिशन का जिक्र हमने किया, बी इट ऑटोट्रॉफ्स जिसमें फोटोसिंथेसिस का जिक्र आया, और सेकंड इट्स हेटेरोट्रॉफ्स जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स हमने देखी, बी इट सैप्रोफाइटिक, बी इट पैरासाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात अगर करें तो हर्बिवोरी देखी हमने, कार्निवोरी देखी और ओमनिवोरी का कॉन्सेप्ट देखा हमने। अब बेटा लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स, और जो आज हमारा टॉपिक है वो रहेगा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, हाउ digestion in human beings occurs, what are the various steps involved in the digestion of the human beings, and where the complete digestion of nutrients is observed. Digestion की बात करें तो it is a process of breakdown of complex food molecules into the simple ones, so in the absorbable forms, so that these can be used by body, and this was about digestion. So today's topic is all about digestion in human beings, how it starts, where it starts, and what are the steps required in it. So if we talk about the steps in human beings as far as the digestion is concerned, the first step is ingestion. The first step is ingestion. The second step is digestion. The third step, it's absorption, and assimilation. And the fourth step finally is egestion, or we can say excretion. Egestion or excretion. These are the four steps that are involved in the digestion of human beings. What is egestion? What is digestion? What is absorption? What is assimilation? And what is मेरे बेटे egestion? आज हम इनके बारे में देखेंगे और पूरा स्ट्रक्चर, पूरा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे. So as far as the ingestion is concerned, it is always the intake of food. The intake of food. And कहाँ से किया जाता है? We know that humans are holozoic. Humans perform heterotrophic mode of nutrition. So बेटे, it's all done from the mouth. We have a buccal cavity, we have a mouth, we have teeth in it, and the process of ingestion, process of taking in of food, starts from the mouth. Then the second process, digestion. Digestion occurs at multiple steps. It occurs in the stomach, it occurs in the small intestine, and as far as the digestion is concerned, it is the same digestion which involved the process of breakdown of complex food molecules into simple substances, and there is physical and chemical breakdown of substances. As far as the absorption and assimilation is concerned, it means when the nutrients are when the nutrients are obtained from किससे बेटे? फूड से. उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर ले जाना, टुवर्ड्स द सेल्स, उनको सेल्स तक ले जाना, उन न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक ले जाना. इसी प्रोसेस को हमने बेटे एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन कहाँ पे होती है, थोड़ी देर बाद जान लेते हैं. एंड द लास्ट प्रोसेस इज ऑल अबाउट इजेशन. इट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स from the body. एंड इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कहाँ से कौन कौन पार्ट्स इन्वॉल्व है इजेशन में, अभी थोड़ी देर बाद हम देख लेंगे.
So if anybody asks you what are the various steps in human digestion, remember bete, the first one is ingestion, the second one is digestion, the third is assimilation and absorption, and the fourth one is the egestion, where we remove the waste products out of the body. Am I clear? Am I clear? Yes, in the comments please. Okay, clear. Yes, let's move now ahead. This process of ingestion, as far as ingestion is concerned, starts from mouth, and this is our mighty mouth. This is our mouth, or we can call it buccal cavity. बक्कल कैविटी। बेटे यहाँ पे दो तीन चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़नी है, सो आई अर्ज यू टू काइंडली फोकस ऑन द स्लाइड्स। चिट चैट अभी के लिए बंद रखो, pause the comments for some time unless you get this concept. Is it fine? Yes. So as far as the mouth is concerned, we all know this is bounded by lips from the external side. यहाँ पे जो माउथ के बाहर वाले साइड से फ्लैप्स होता है, इट्स guarded by lips on external side. और laterally means the side waves of this mouth. Lateral side से क्या होता है? Laterally it's guarded by cheeks, and inside cheeks there are teeth. बेटे this, यहाँ से cheeks दो है and इनके अंदर teeth पाए जाते हैं. Besides, इस lower side से क्या होता है इस mouth में? The lower side is guarded by tongue. The muscle that helps us to speak, the muscle that helps us to to pronounce the words, इस muscle को tongue कहते हैं, जो lower the floor of the buccal cavity बना देती है. As far as the upper part of this is concerned, upper part, जो upper part है किस बेटे mouth का, it's known as palate. There's a palatine bone on the upper surface, and यही palate, it forms the roof of the mouth, it forms the roof of the buccal cavity. So अगर कोई आपको बोले बच्चे that give us a presentation of mouth, what is mouth? Sir, mouth, or it's also known as buccal cavity, it's the first step, I can say it's the first part of the digestive system, wherein the process of digestion, process of nutrition, process of ingestion starts in human beings. First, it's guarded by lips on the external side, then it's guarded laterally by the cheeks and teeth, then on the lower side there is a tongue which helps us to masticate the food, which helps us to move the food, which helps us to regurgitate the food, and on the upper side there is palatine bone which forms the roof of the mouth. अगर इस palate की बेटे बात करेंगे तो if we see the anterior part, अगर front वाला part देखेंगे तो it's soft and plain, it doesn't bear any undulating membrane surfaces. और अगर बेटे बैक वाला पार्ट की बात करेंगे, the posterior part of this mouth, it's hard plus rough. This roughness that's found on the palate पिछले वाले साइड से, ये किस काम में आता है बेटे? It helps in the mixing of the food, it helps in the regurgitation of the food. नीचे फूड को उतारने में ये हमारी मदद करता है, and it's aided by tongue. ये माउथ के बारे में जानकारी थी बच्चे. बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहीं पे आपको मैं कुछ चीज़ों से रूबरू कराता हूँ. दैट इन द माउथ वी हैव टीथ. these are all teeth. Let's make them with a yellow color. See bete, these are teeth, and these vary in number, these vary in shape, these vary in size. This is the teeth. ऐसे लगता है गंदा है, ब्रश नहीं किया इसने. हाँ, आई एम हाईलाइटिंग इट आपके लिए बेटे. सी, दिस इज टीथ. देखो अभी मैंने कहा लेटरली इट्स गॉटेड बाय टीथ. नीचे हेयर इट्स, ये जुबान है, ये ऊपर वाला फ्लोर है, एंड साइड से क्या आते हैं बेटे? टीथ आते हैं. साइड से बेटे टीथ आते हैं. सो दिस इज अबाउट जनरल स्ट्रक्चर अबाउट व्हाट? ह्यूमन माउथ. अगर हम बेटे बात करेंगे अब किसकी? माउथ की, तो इट बियर्स टीथ.
Humans bear different types of teeth. Humans bear many types of teeth. पहले देखेंगे बच्चे these teeth, ऊपर वाला जबड़ा, upper jaw, this one, and this lower jaw. We see 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. These are different. ऊपर भी 1, 2, 3, 4. Different types of teeth are present in the human beings and which have their particular function. फिर अलग अलग दो आते हैं, this one and this one, this one and this one. बेटे let's name them. बाद में confusion ना हो, let's name them. These 4 teeth जो मैंने नीचे बनाए और जो मैंने ऊपर बनाए, इनको बच्चे कहते हैं incisors. Incisors. So if anybody asks you what are incisors, these are those teeth which are present on the front side of the mouth. Then there is this. One is this pointed, second is this pointed, third is this pointed, and fourth one is this pointed. These are known as canines. Canines. Bache, are you getting me? These are known as canines. Then there comes this. See, bete. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Upper B. 1, 2, 3. 1, 2, 3. These green teeth which come before molars, these are known as premolars. Premolars. और बेटे जहां तक बात है लास्ट टाइप ऑफ टीथ की, जो हमारे पीछे सबसे पीछे दिखाई देते हैं, दिस 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. These are known as molars. These are known as molars. The first teeth are known as incisors. These pointed teeth which are present here are known as canines. The small teeth that are present after canines are known as premolars, and the teeth that are present at the back of the mouth which are broad, those are known as molars. Those are known as molars. चलिए आगे चलते हैं. Those are known as molars. बच्चे, this is the representation. See, this was the incisor. ये आगे. This was the incisor. ये आगे present है. You can see the shape of this. ये छोटा सा teeth है. It's flat. It's flat. बिल्कुल flat. See, the canine is pointed. The canine is pointed. The premolar is flat but ज़्यादा नहीं. And this molar teeth ये बहुत ही ज़्यादा flat है. And बेटे इनकी अलग अलग functions होती है. The incisors, these help us to bite the food. Canines, these help us to tear the food. See, let's write it here. इसको bite. आगे canine tear. And these aid in biting and chewing. Biting plus chewing. Biting and chewing. अगर आपको कोई बोलेगा what is the number of teeth that's present in humans? So let's make a dental formula here. Dental formula. Dental formula. पिछली डायग्राम पे जाए. ये कितने थे बेटे? सी, अगर हम इस जा को ऐसे डिवाइड करेंगे ना, ऐसे, इफ वी डिवाइड दिस जा हियर लाइक दिस, तो आधे दांत इधर गए, आधे दांत इधर गए. दिस इज हाफ जा. दिस इज हाफ जा. दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, मैक्सिला एंड मैंडिबल, दिस एंड दिस. हाफ जा की अगर फॉर्मूला देखेंगे तो देखो बेटे, इंसिजर 1 है, इंसिजर 1 है, इंसिजर 2 है, 2. कैनाइन 1 है, 1. ये जो प्रीमोलर है ये कितने थे? 2. 2, 1, 2. एंड ये जो मोलर है 1, 2 एंड 3. दिस इज 3. Go for means for the half jaw, it's for the half jaw, it's 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. And if we see, if we add money to it, then it's again 2, 1, 2, 3. So for the whole jaw, what it becomes 4, 2, 4 and 6 for the full jaw. For the full jaw. समझ आई बात बेटे? बहुत आसान है, बहुत आसान है. You see that for the whole jaw it's 4, 2, 4, 6, and for this it's 2, 1, 2, 3.
अब आपने देखा होगा दैट वी हैव टू सेट ऑफ टीथ, वी हैव टू सेट ऑफ टीथ। बच्चे जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास टू सेट ऑफ टीथ होते हैं, टू सेट ऑफ टीथ। पहले वाले को कहते हैं टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ, एंड सेकेंड वाले को कहते हैं परमानेंट टीथ। इट्स कॉल्ड टेम्पोररी या मिल्क टीथ, एंड दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट और अडल्ट टीथ, अडल्ट टीथ। रिमेंबर बेटे, इन ह्यूमंस देयर इज, और मैनी एनिमल्स, अभी हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस को ही ले लेंगे अपने साथ। ह्यूमंस में बच्चे क्या होता है कि दो तरीके के दांत आते हैं, दो दो बार दांत आते हैं, पहले बच्चे में आते हैं फिर निकल जाते हैं, और फिर जब एक इंसान बड़ा होता है रीचिंग द अडल्ट एज, फिर उसमें अलग सेट ऑफ टीथ आते हैं। द appearance of teeth twice in the body, the appearance of teeth twice in the body is known as diphyodont, 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 diphyodont। और बेटे रिमेंबर दैट, हमने देखा हमारे पास कैनाइन अलग शेप का, इंसिजर अलग शेप का, प्रीमोलर अलग शेप का और मोलर अलग शेप का। अगर आप ऊपर भी और नीचे भी देखोगे ना तो ये इनकी शेप अलग अलग है। द शेप ऑफ एवरी टीथ प्रेजेंट इन द ह्यूमन माउथ वेरीज, इट डिफर्स, सो इट इज ऑल्सो नोन एज हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट डेंटिशन। अगर कोई आपसे बोलेगा, रिश्तेदार सवाल पूछेंगे, क्योंकि कोई होता है ना ऐसे, वो बेटा मुझे बोलो व्हाट इज डाइफाइडोंट एंड हेटेरोडोंट डेंटिशन। अब बोलो द अपीयरेंस ऑफ टू सेट ऑफ टीथ इन द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब एक इंसान के अंदर दो बारी दांत आते हैं उनको हमने डाइफाइडोंट कहा, उसमें टेम्पोररी टीथ आते हैं और परमानेंट टीथ आते हैं। और बेटे जब हमने डिफरेंट तरीके के दांत देखे, हमने इंसिजर्स की अलग शेप देखी, हमने कैनाइंस की अलग शेप देखी, हमने प्रीमोलर्स की अलग शेप देखी, और हमने बेटे मोलर्स की अलग शेप देखी, तो दिस इज द हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। एक और टर्म अगर आपको याद रखनी होगी, थीकोडोंट। थीकोडोंट मींस हमारी जो जा है ना बेटे, सी लाइक दिस, इस जा में स्पेसेस बनी है ना, इस जा में स्पेसेस बनी है ना, हमारी हड्डी है, दिस इज द लवर जा, इसमें स्पेसेस बनी है, और ये दांत जो है बच्चे, और ये जो दांत है ये इसी में फंसे हुए हैं, ऐसे ऐसे फंसे हुए हैं। द द टाइप ऑफ डेंटिशन, द टाइप ऑफ डेंटिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के दांत किसमें, सॉकेट्स में फंसे होते हैं बेटे, उसको थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन कहा जाता है, उसको थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन कहा जाता है। एडिशन नॉलेज है, लेकिन क्लास 10th में आप ये दो टर्म्स अच्छे से ध्यान रखो, दिस आई स्टार मार्केट एंड दिस आई स्टार मार्केट, ये दो रखो। तीसरी याद रही तो ठीक, नहीं याद रही तो छोड़ दो। यहां तक बात क्लियर, यहां तक मेरे बच्चे बात क्लियर। अब जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देखा गया उसमें क्या है, इन द माउथ, इन द माउथ वी हैव सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं बच्चे, एंड इन सैलिवरी ग्लैंड्स का काम क्या है, यही सैलिवरी ग्लैंड्स है, थ्री सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट देयर। नाम रखने की याद नहीं है, सबलिंगुअल है, सब मैक्सिलरी है एंड पैरोटिड है। बेटे अभी नाम याद नहीं रखो, इनका काम देखो, दैट दीज सेक्रीट एंजाइम्स, ये एंजाइम सेक्रीट करते हैं, उसको कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज, उसको मेरे बच्चे कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज बोलो या टाइलिन बोलो, PTYALIN, इसमें P साइलेंट रहता है, टाइलिन बोलो बेटे। इस सैलिवरी एमाइलेज का या इस टाइलिन का काम क्या है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। चूंकि बच्चे मेरे बेटे हमारे मुंह में फूड बहुत कम टाइम तक रहता है, बहुत कम टाइम तक रहता है, सो जिगर this so jigar, let me have some slide straight. The digestion of carbohydrates starts in the mouth, the digestion of carbohydrates starts in the mouth। लेकिन अगर आपको कोई बोलेगा कि does 100% does 100% carbohydrate digestion occur in the mouth? नहीं बेटे, हमने फूड लाया, हमने फूड खाया, by the mouth and by the salivary glands हमने
ब्रेक डाउन किया एंड निगल लिया, हमने एनगल्फ किया फूड को, नीचे उतार दिया, इंजेस्ट किया फूड को, और कम ही टाइम के लिए मुंह में फूड रहा। लेकिन इस कम टाइम में रहने के लिए इस कम टाइम में क्या हुआ, some percentage of carbohydrates started digesting in the mouth and उससे क्या होता है बेटे, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था डाइजेशन ऑफ कार्ब्स कहां पे स्टार्ट होती है, कंप्लीट नहीं, स्टार्ट कहां होती है बेटे, माउथ में होती है, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। लेट मी एड a slide to it, wait a second, wait, हाँ हाँ तो बेटे, हाँ लेट्स इरेज इट। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहां पे स्टार्ट होती है, माउथ में। अगर आपको कल का लेक्चर याद हो दैट माउथ, द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वायर माउथ, द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वायर माउथ से स्टार्ट हुआ था, फिर बेटे ईसोफेगस में आया था, फिर स्टोमक में आया था, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था, लार्ज इंटेस्टाइन में आया था। रिमेंबर दैट इन द ईसोफेगस, in the esophagus there is no digestion of food, there occurs no digestion of food, no digestion of food because वहां पे कोई ग्लैंड नहीं होता। this is the diagram, yes, यहां से फूड गया था इन द माउथ, देन इन द यहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड्स ने ऐड किया था, सेलिवरी एमाइलेस या टाइलिन ऐड किया था, और फिर ये फूड नीचे आया, यहाँ इस पाइप से जिसको हमने ईसोफेगस का नाम दिया था। ई से भी स्टार्ट होता है, ओ से भी स्टार्ट होता है। सो बच्चे दिस ईसोफेगस देयर ऑकर्स नो डाइजेशन, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पेरिस्टाल्सिस होती है, पेरिस्टाल्सिस क्या है बेटे, अगर यहां पे देखो, यहां पे दिस इज द फूड पाइप, और यहां से फूड आया, इस फूड को नीचे धकेला जाता है, सी दिस इज द फूड पाइप, इसको यहां धक्का दिया, और किससे ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, बिकॉज ऑफ न्यूरॉन्स, बिकॉज ऑफ नर्व्स होती है। इट्स ऑल द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो इसमें रोल प्ले करता है। आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे प्लेक्सस ऑफ माइनर, प्लेक्सस ऑफ ऑर्बा, ये क्या होते हैं बेटे, बंच ऑफ न्यूरॉन्स जो कंट्रोल करते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल को। यहां तक बात क्लियर है। अगर उसके बाद हम बात करेंगे ईसोफेगस के बाद, अगर हम बात करेंगे तो बेटे ईसोफेगस के बाद आता है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारा जो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, जिसको हमने कहा हमारा स्टोमक, हमारे स्टोमक भैया, स्टोमक, दिस इज द स्टोमक, सी ये रहा हमारा स्टोमक। इस स्टोमक में बच्चे क्या होता है, दिस इज जे शेप्ड ऑर्गन, बैग लाइक, इसमें चर्निंग मूवमेंट्स होती है, और इसको भी नर्वस सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है, कुछ न्यूरॉन से कंट्रोल किया जाता है जो उसको चर्निंग में मदद करती है। अगर स्टमक के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 3 चीजें रिलीज होती है, एक होता है, लेट मी गिव एन ऑर्डर, एक होता है बेटे HCl, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डाइजेशन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, वेट अ सेकंड, कहीं थी स्लाइड पे, यस हेयर, दिस बेटा सी, यहाँ पे स्टोमक में आया ना खाना, ऊपर से ईसोफेगस से कहाँ गया, स्टोमक में। अब यहाँ चर्निंग मूवमेंट्स होती है, लेकिन अगर हम स्टोमक के वॉल को देखेंगे ना, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको कहते हैं स्टोमक के ग्लैंड्स, किसको, STOMACH। स्टोमक में क्या होते हैं बेटे, ग्लैंड्स होते हैं जिनको हमने नाम कहा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, हमने इनको नाम कहा। एंड these gastric glands secrete 3 types of substances, देखो बेटा 1, 2 और 3। The first one is HCl, the second one is pepsin, pepsin, and the third one is mucus, बेटे देखो सिंप्लीफाइड वर्जन में पढ़ा रहा हूं, नो यार चैट सभी बंद रखो ना यार, डोंट चिट चैट बेटा, इट्स फॉर ऑल बोर्ड्स। मैंने कल भी कहा आपको कि इट्स फॉर ऑल बोर्ड्स, नॉट ओनली JK बोर्ड्स। क्लास 10th में जो बच्चा है वो मेरे लेक्चर को देख सकता है। इज इट फाइन? ओके। इन दिस स्टोमक व्हाट वी सी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, अगर हमने इस स्टोमक के वॉल को
देखा, अगर हमने इसको इमेजिन किया या इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, तो वी सी ये 3 चीज़ें रिलीज करता है। एक होता है HCl, एक होता है पेप्सिन, और बेटे एक होता है म्यूकस। अगर HCl की बात करेंगे तो इट्स एसिडिक जूस। इसका काम क्या है? एक तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एसिडिक पीएच बना देता है। उस एसिडिक पीएच से क्या होता है? फूड की डाइजेशन होती है। दूसरा काम इट किल्स पैथोजेंस। अगर यहां से फूड आया, बेटे देखो, ऊपर से फूड आया, सी हेयर, सी यहां पे फूड आया, तो इस फूड में कुछ बैक्टीरिया थे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स थे। दिस इज फूड, एंड इसमें कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स थे। जो ये HCl यहाँ से आया ना गैस्ट्रिक ग्लैंड से, इन्होंने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म किया, इन्होंने इनको किल किया, एंड फूड जो है ना बेटे, फूड साफ हो गया। नाउ देयर इज नो impurity, there is no contamination, there is no pathogen linked to the food. दूसरी बात, ये जो पेप्सिन है ना यहाँ पे, ये नखरेबाज है। ये कहता है जब तक मुझे एसिडिक पीएच नहीं बना के दो तब तक मैं काम यार नहीं करूंगा। और दिस HCl हेल्प्स दिस पेप्सिन टू एक्ट और एक्टिवेट होने में मदद करता है। जो ही ये पेप्सिन आया, ये प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है। किन में बेटे? अमाइनो एसिड्स में। रिमेंबर बेटे, यहां पे पार्शल या वी कैन से हाफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑकर्स इन द स्टमक। और तीसरी बात, अब ये म्यूकस है, ये जो एसिडिक पीएच है ना, ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है ना, यहां पे ये प्रिवेंट करता है किसको? द वॉल ऑफ स्टमक, प्रिवेंटस वॉल्स ऑफ स्टमक। किससे? फ्रॉम एसिडिक एक्टिविटी ऑफ किसकी? HCl की। HCl बेटे बहुत खतरनाक होता है, अगर हमारे हाथ पे गिरेगा तो हमारा हाथ जल जाएगा। और इस लाइनिंग को बचाने के लिए यहाँ पे म्यूकस की लाइनिंग डाली जाती है। और अगर HCl यहाँ से आया तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके? वॉल में नहीं आता, म्यूकस के साथ आता है, और यहाँ पे काम हो जाते हैं। देखो बेटा बहुत आसान है, स्टोमक की बात है तो 3 टाइप्स ऑफ चीज़ें निकल जाती है। एक तो HCl है, सेकेंड इज पेप्सिन, एंड द थर्ड वन इज म्यूकस। इनका काम क्या है हमने बयां किया। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लिवर की बात करेंगे। और इस स्लाइड में देखो पहले बेटे, यहां से लिवर था, यहां से पैनक्रियाज थे। ये इसके स्टोमक के पीछे होते तो लाइक दिस। इस स्टोमक के पीछे यहां से होते हैं पैनक्रियाज। पीछे आप इमेजिन करो, दिस द स्टोमक फ्रॉम द एंटीरियर साइड, और उसके पीछे डॉर्सल साइड से पैनक्रियाज होते हैं। तो बेटे याद रखो दिस लिवर एंड पैनक्रिया क्या करता है? लिवर अपनी सेक्रीशंस डालता है गाल ब्लेडर में। दिस स्ट्रक्चर हेयर इज नोन एज गाल ब्लेडर। इसको हमने क्या नाम दिया बच्चे? गाल ब्लेडर का नाम दे दिया। और इसमें क्या रहता है? स्टोर बाइल स्टोर रहता है। अब हमें पता है इस स्टोमक में क्या था बेटे? फूड था एसिडिक, यहां एसिडिक फूड। अब अगर ये एसिडिक फूड यहां से बाहर आया तो ये इसको जलाएगा ना, ये इस लाइनिंग को जलाएगा ना। इसका काम कौन करता है? जो यहां से बाइल आता है बेटे, बाइल ये 2 काम करता है, 1 और 2। पहले तो ये एल्कलाइन बना देता है चीजों को। ये जो फूड आ रहा है स्टोमक से, इसने इस फूड को एल्कलाइन बना दिया। उससे क्या हुआ? जो ड्यूडेनम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो एसिडिक एक्टिविटी ऑफ HCl से बच गए। दूसरी बात क्या है? इसमें होते हैं कुछ बाइल सॉल्ट्स जो क्या काम करते हैं बेटे? जो डाइजेशन ऑफ फैट में मदद करते हैं, डाइजेशन ऑफ फैट्स में मदद करते हैं। यहां तक बातें क्लियर? यस, इन द कमेंट्स नाउ यू कैन पिंग मी इन द कमेंट्स। यहां तक बेटे बातें क्लियर? सर बाइल की बात हमने की, तो बाइल आता है। जो पैनक्रियाज है हमारे, दिस पार्ट नाउ बेटे, दिस पार्ट, ये जो हमारे पैनक्रियाज है, इससे क्या होता है? पैनक्रियाज बेटे डोंट गिव एन blink of eye to your spammers. I know here are many spammers spamming in our chats, but बेटे आप पढ़ो, आप पढ़ने आए हो तो हम अपने काम से काम रख लेते हैं। देखो बेटा यहां से बाइल आया, इसने इस दिस इज अ शी शेप्ड पार्ट, इट्स नोन एज ड्यूडेनम। यहाँ लिखा है।
और यहाँ से पैनक्रियाटिक से अपने जूसेस आए, अब ये सारे यहाँ मिले। पैनक्रियाटिक जूसेस में बेटे होते हैं ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। इस ट्रिप्सिन का वही काम है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन्स को डाइजेशन करना। एंड इस लाइपेज का काम क्या है, फैट्स को फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करना, ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करना। सो वी कैन से द डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑकर्स एट वेरियस स्टेजेस। स्टार्ट तो माउथ से हुआ, जहां पे सल्वरी अमाइलेज ने टाइलिन का काम किया था। उसके बाद क्या हुआ बच्चे, उसके बाद इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं हुई। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां से, लिवर से बाइल आके गाल ब्लेडर में स्टोर हुआ, गाल ब्लेडर ने रिलीज किया, और यहां से पैनक्रियाज से आके पैनक्रियाटिक जूस जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज की कंपोजिशन थी, उसमें क्या हुआ बच्चे, दैट उन्होंने प्रोटीन्स की डाइजेशन की और उसमें फैट्स की डाइजेशन हुई। देयर ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, रिमेंबर दैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर ऑकर्स कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, देयर ऑकर्स बच्चे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात करेंगे, दीज आर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, सी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो इनको स्मॉल पहले क्यों बताया जाता है, बिकॉज अगर हम इनको ऐसे देखेंगे ना, ट्रांसवर्स सेक्शन इनका देखेंगे, जो इनका ल्यूमिन है ना जिगर, जो इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स का ल्यूमिन है वो छोटा होता है, वो छोटा होता है, तभी इनको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। एंड ल्यूमिन इज दिस स्पेस जो एक साइड से दूसरे साइड तक प्रेजेंट है। देखो बेटे, दीज आर स्मॉल इंटेस्टाइन, दीज आर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यू कैन सी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर वाला सरफेस है ना, अंदर वाला सरफेस ल्यूमिन के अंदर, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज विलाई, दीज आर नोन एज विलाई, VILLI। इनका काम क्या है, दीज इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन। देखो बेटे, अगर इनका एरिया ऐसे होता तो फूड यहां से डायरेक्टली जाता। अब इनका एरिया ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे, फूड फूड को ऐसे 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 और ऐसे जाना पड़ता है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन, जिसको फूड फूड को टाइम लगता है इसके अंदर जाने में। और बेटे तभी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर ऑकर्स कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटे, इट सेक्रीट्स सम जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस, इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल जूसेस, जिसको सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, जिसको सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। और बेटे इसमें भी वही होता है कि वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करें, अमीनो एसिड्स में डिवाइड करें। और देखो बेटे, प्रोटीन्स किन में ब्रेक डाउन किए जाते हैं, अमीनो एसिड्स में, फैट्स किस में, फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल में, और बेटे कार्बोहाइड्रेट्स किस में, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट किया जाता है बेटे ग्लूकोज में, स्टार्च में, स्टार्च में। और यही है ना, अगर हम अब पूरा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देखें तो द ब्रेक डाउन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और वी कैन से दीज न्यूट्रिएंट्स इन इन इस न्यूट्रिशन से, फूड से, इन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करना सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस और फॉर्म्स में, और वही बेटे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो यहाँ तक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात की और सक्कस एंटेरिकस की बात की। द फुल और द कंप्लीट डाइजेशन किस में होती है बेटे, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। सर अब तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट, ये प्रॉब्लम आई कि व्हाट अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में बेटे देयर ऑकर्स नो डाइजेशन। हाँ, यू हर्ड इट राइट, देयर ऑकर्स नो डाइजेशन। बट लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करता है, एक तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। और दूसरी बात जिगर, दीज हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, फीसेस होते हैं बेटे। देखो देखो इन द लार्ज इंटेस्टाइन ये एक पार्ट है,
ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है। सी लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, दिस द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, इसको आपको कुछ नहीं करना है अभी। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ से पानी निकला, पानी निकला, पानी निकला, पानी निकला, किस में एब्जॉर्ब हुआ? वापस बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ। यहाँ से भी पानी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। जो ये वाला स्टेज है ना, ये वाला साइड, ये वाली साइड है बेटे, यहाँ पे पूरा ड्राई होता है ऑलमोस्ट। देयर इज नो वाटर लेफ्ट, देयर इज नो वाटर लेफ्ट इन द फूड, इन द वी कैन से इन द वेस्ट। और इसको फिर यहाँ पे एक ऑर्गन में स्टोर, एक पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में स्टोर किया जाता है, जिसको बेटे हमने रेक्टम कहा, RECTUM, रेक्टम। एंड दिस लास्ट पार्ट डू यू सी हियर, इसको इंस कहते हैं, इसको इंस कहते हैं। तो बेटे द अगर आपको कोई पूछेगा द स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, इट्स नोन एज रेक्टम ऑफ किसका बेटे? लार्ज इंटेस्टाइन का। और अल्टीमेटली द रिमूवल ऑफ वेस्ट्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट्स इज डन बाय एंस। एंड यहाँ पे एक बेटे गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्फिंक्टर होता है, इट इज गार्डेड बाय एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मेरे बेटे इन ह्यूमंस, जहाँ पे हमने बात की कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, और बेटे एंड कहाँ पे होता है? एंड्स पे एंड होता है। दिस इज द एंड्स जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड होता है। इसके बीच में क्या होता है? इसोफेगस है, माउथ है, पहले माउथ है, सेलिवरी ग्लैंड्स है, तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है। उसके बाद इसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, तो देयरफॉर देयर ऑकर्स नो डाइजेशन। उसके बाद तीसरी बात क्या है बच्चे? स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जहाँ पे चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ द फूड होती है, वहाँ पे HCl आता है, वहाँ पे पेप्सिन आता है, वहाँ पे बेटे म्यूकस सेक्रेट किया जाता है, एंड दैट एड इन डाइजेशन, दैट एड इन डाइजेशन। वहाँ पे ऊपर जो कॉम्प्लेक्स फूड था, यहाँ पे सॉफ्ट बनाया जाता है, फिर इंटेस्टाइन में इसको फर्दर सॉफ्ट बनाया जाता है, और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से सॉफ्ट बनाया जाता है। उसके बाद एब्जॉर्ब और एसिमुलेट किया जाता है इनसाइड द ह्यूमन इंटेस्टाइन। यू सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलाई है, उन्हीं विलाई के अंदर लैक्टिल से उसको अंदर लिया जाता है टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी फॉर एनर्जी, फॉर वर्क एंड फॉर डूइंग अदर प्रोसेस ऑफ द बॉडी। उसके बाद हमने देखा लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं हुई एक्सेप्ट देयर इज वाटर की एब्जॉर्प्शन, एक्सेप्ट देयर इज वाटर की एब्जॉर्प्शन। यहाँ से लिवर और यहाँ से पैनक्रियाज ने भी अपनी सिक्रीशन डाली, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हुई। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी बेटे डाइजेशन नहीं हुई, बट पानी जज्ब हुआ, पानी एब्जॉर्ब हुआ, और जो सॉलिड फूड था, जो सॉलिड फीसेस थे, वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, उनको रेक्टम में स्टोर किया गया, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, इनको निकाला गया बॉडी से बाहर। आई होप यहाँ तक आपका लेक्चर क्लियर हो। आई वुड हैव वांटेड टू कंटिन्यू द क्लास, बट बेटे मेरी स्पेशल क्लास है ऑन द अनअकैडमी, यू कैन जॉइन अस देयर टू। माय नेम, गुड नेम इज इखलाक सर, एंड आई एम डीलिंग विद द सेम बायोलॉजी पोर्शन वहाँ पे भी। आई विश एवरीबडी अमंग यू जो भी यहाँ पे चैट्स में मौजूद हैं, देख रहे हैं, a good time ahead. Wishing you best for your success and for your future. Until next time, thank you so much.